Good morning, students. Uh, we will discuss the chapter Rulers and Buildings. And in prior video, we have discussed the engineering skills and construction. So in that, we have seen two temples, Raj Rajeshwara temple in Tanjore and the you can say Kandriya temple in Mahadevan temple. So these two temples we have discussed. Now we'll discuss like what kind of technology has been used. So the two technology and the stylistic developments are noticeable from the 12th century. The weight of the superstructure above the door and the windows was sometimes carried by the arcs. Arc, I told you that what is arc? This is we call arc. तो ये आपका विंडो हो सकता है, इसमें आपका जैसे वी हैव सीन सम, सो इसके ऊपर आपका पूरा जो है वो डिज़ाइनिंग डिपेंड करता है, ठीक है. सो two kind of arc, and this architectural form was called arcuate. Arcuate, this was particular means arc से बना है तो arcuate ही होगा. Second technique was that the limestone cement was increasingly used in construction. So now we cannot be amazed by this that today we use in the construction cement, and this was very high quality cement which when mixed with the stone chips hardened into the concrete. We know it that what is the process of cement in making or constructing the means you can say house or the building, and this made the construction of large structures easier and faster. Take a look of the construction side figures point 6. Figure point 6 is here given a painting from the Akbar's Nama dated itna itna, that is 1590 to 95, showing the construction of water gate of Agra fort. ठीक है, वहाँ पर ये इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होगा. तो ये तब का बना हुआ है और अभी तक भी ऐसा है. तो इस चीज़ को शो करता है what kind of technology they used in 16th century. So two things we have discussed in engineering skill. The first is that arc system. First was arc. Second is that using of cement and limestone. So these two techniques they used earlier. Now we proceed to the another topic, building temples, mosque and tank. How they used to construct it. So temples and mosques were beautifully constructed because they were places of worship. ठीक है, भगवान का घर है, ईश्वर अल्लाह खुदा जो बनाना जा रहे हैं उसको बहुत ब्यूटीफुली बनाएंगे. सो दे वर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, दैट्स वाई मोस्ट ब्यूटीफुली एंड केयरफुली दे वर कंस्ट्रक्टेड. दे वर ऑल्सो मीन टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर एंड वेल्थ. देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलती है, भगवान का घर तो है तो इसलिए अच्छे बनेंगे. दूसरा क्या है, वो डेमोन्स्ट्रेट करते थे, डेमोन्स्ट्रेट शो ऑफ करते थे, बताते थे क्या, पावर और वेल्थ किसका, एंड डिवोशन, तीन चीज़ों का शो करते थे. ऑफ द पेटर्न, पेटर्न कौन है, जो इस काम को करा रहे हैं. Take the example of Raj Rajeshwara temple. An inscription mentioned that it was built by the king Rajendra Raja Rajadeva of the worship of the god. तो एक तरीके से जो इंस्क्रिप्शंस में लिखा है वहाँ मेंशन है बिल्ड बाय राज राजदेवा, द वर्शिप of his god, for the worship of his god. And Raj Rajeshwaram, that is, notice the name below, of the ruler and god are very similar. And the kind of the king, ruler and the god are very similar. The king took the god's name because it was auspicious and wanted to appear like a god. To proceed the story further, I want to tell you that
basically what used to happen, why the name of the god and the king was similar, and why it has been written in the temples of god the name of the ruler, means is that there is a story behind, and it is fact one, like the king or the raja who used to got victory over other kingdom, and you can say many battle took place in his time. So what used to happen कि he was in fear of sin, कि मैंने पाप किए हैं, तो उसके लिए वो क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर बनवाते थे, कि कहते हैं ना मंदिर बनवाना बड़ा पुण्य का काम है। तो उनको ये लगता था हमारे पाप धुल जाएंगे, और इससे वो क्या करते थे, क्योंकि दे आर डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज फॉर द सेक ऑफ किंगडम एंड पीपल एंड सब्जेक्ट, तो इससे उनको लगता था कि नहीं प्रजा के लिए किया है तो अच्छा ही, और प्रजा भी इनमें विश्वास करती थी, तो वो अपने आप को शो ऑफ कर देते थे एक गॉड की तरह। ठीक है, राजा भगवान का रूप लगता था लोगों को भी, तो इसीलिए उसका नाम जो था मंदिरों में भी होने लगा। थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल वन गॉड, अब यहाँ पर उसको गॉड ही कहा गया है, भगवान कह दिया है, देवता कह दिया है। राजा राजादेवा ऑनर्ड अनदर राज राजेश्वरम, एंड द लार्जेस्ट टेम्पल वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग्स, जितने भी बड़े बड़े मंदिर होते थे दे वर कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग्स, and the other lesser deities in the temple were god and goddesses of the allies and subordinate of the rulers। अब देखिए जितने रूलर्स हैं उसके एलीज हैं, फ्रेंड हैं, जो और देवी देवता जो रखे गए हैं वो भी उसी की एक तरीके से इमेज जैसे होते थे, मतलब उनका भी वहाँ पर जगह थी। द टेम्पल वॉज मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज एलिज। तो ये जो टेम्पल्स बने हैं साउथ इंडिया में, इनमें एक मिनिएचर फॉर्म है, स्मॉल काइंड ऑफ मॉडल है ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज एलिज, एंड दे वर्शिप्ड देयर डेटीज टुगेदर इन द रॉयल टेम्पल एज दे वर्शिप देयर डेटीज। डेटीज का मतलब है जो भी उनके ईश्वर लाइक जो भी हैं, भगवान के जैसे जो भी हैं, उनकी रॉयल टेम्पल्स में पूजा होती थी। इट सीम्स एज इफ दे ब्रॉट टू जस्ट रूल ऑफ द गॉड्स ऑन अर्थ। ठीक है, मतलब वो इसलिए उतरे हैं ज़मीन पर कि उनको प्रोटेक्ट करना है या फिर उनको रूल करना है, या फिर जैसे कि अब हम अगर माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस लें, देर के नॉट बी रॉन्ग कि राजा राम है, तो राजा राम एक तरीके से ह्यूमन ही थे, लेकिन माइथोलॉजिकली एपिक वाइज अगर हम देखें एज ए हीरोइज्म कि वो इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा थे, तो लॉर्ड शिवा थे तो सॉरी लॉर्ड विष्णु थे, तो लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशन होने की वजह से क्या हुआ कि उनको मतलब कुछ उनके मिरेकल्स थे या कुछ इमेजेस थी या सम काइंड ऑफ स्टोरीज वर फेमस, तो उनको एक तरीके से टिल द टाइम वी पीपल वर्शिप। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वो थे क्या, ही वॉज अ ह्यूमन। तो इसी तरीके से बिकॉज ऑफ गुड अचीवमेंट्स समटाइम्स दीज रूलर्स वर वर्शिप्ड बाय द पीपल। तो इसी तरीके से यहाँ पर और भी रेफरेंसेस हैं, लाइक मुस्लिम सुल्तान्स एंड Pasha did not claim to be incarnation of God, but Persian court chronicles describe the Sultan as the shadow of God। अब इनमें भी क्या है, खलीफा मोहम्मद जो भी माने जाते हैं वो भी क्या है कि वो भी एक तरीके से इसी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, वो शेडो ऑफ गॉड कहते हैं कि ये भगवान का, ईश्वर का दूत है या उसकी छाया जैसा है। एज इंस्क्रिप्शंस ऑफ Kuwait al-Islam mosque explained the god chose Alauddin as a king because he had the qualities of Moses and Solomon। उसके अंदर इस तरीके की क्वालिटीज़ थी मोजेस और सोलोमन की, एंड द ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ द पास्ट, मतलब उन्होंने अच्छे कानून बनाए हैं। द ग्रेट लॉ गिवर एंड द आर्किटेक्ट वॉज गॉड हिमसेल्फ, और वो कौन हो सकता है, भगवान हो सकता है। तो ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ chaos and introduce the order of symmetry, मतलब उन्होंने एक ऐसे संसार की रचना की जिसमें कि क्योस नहीं है, मतलब अशांति नहीं है, शांत है, एंड इंट्रोड्यूस द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, और एक जैसा बनाने की कोशिश की है। ठीक है, इसको इतना ही पढ़ते हैं, द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। ठीक है, टिल देन थैंक यू।